As we know that the photosynthetic pigments can be separated by using the lipophilic solvent like the acetone, ethyl methyl ether, acetone, and ethyl alcohol. Now let us discuss about the what are the different types of photosynthetic pigment present in plant kingdom as well as the bacteria. चलिए तो इनके बारे में डिस्कस किया जाता है. So सबसे पहले we know that the photosynthetic pigment divided into three main types, that is chlorophyll, carotenoids, and phycobilins. Chlorophyll, they are green in color. Carotenoids, they are other than green in color, and phycobilins, they are blue green or that is red green in color. Then अगला part chlorophyll pigments के बारे में. Chlorophyll, it is the universal pigment, that is the chlorophyll A, which is present in all types of the photosynthetic organism, maybe bacteria or maybe the higher plant. ठीक है. तो ये जो chlorophyll pigments है, इसे पेलेटियर एंड कैवेंटो इन्होंने आइडेंटिफाई किया और स्टॉक ने इनका स्ट्रक्चर बताया था. तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Now, different types of chlorophyll pigment which is found in different groups of organism, that is bacteria as well as the green plants. तो कौन से है? Chlorophyll A, B, C, D, E, bacteriochlorophyll and bacterioviridae. So these are the different examples of the chlorophyll pigments. Now, the most abundant photosynthetic pigment that is present in all autotrophic group of organism is chlorophyll A. Okay, तो आपको यहाँ पर याद रखना है chlorophyll A, its molecular formula C55, S72O5, N4 and Mg. इसका स्ट्रक्चर अब हम थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो ग्रीन प्लांट है उसमें पाया जाता है. ओके. Then what is which type of the light it absorb? It absorb the wavelength of light ranging from the, that is 450 that is 4 we can say the 420 to 480 nanometer ये absorb करती है. Then 680 nanometer, 670 to 680 nanometer भी ये absorb करती है. ठीक है. Then chlorophyll A is the universal pigment which is present in all types of the green plants, all the groups algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiospermic plant, as well as it is present in the autotrophic photosynthetic bacteria, cyanobacteria. Then chlorophyll B, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन के जो नंबर है वो कम है. ओके, सो इसे याद रखना है क्योंकि यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH. ओके, यानी इथिलीन यहाँ पर ऐड होने की वजह से दो हाइड्रोजन यहाँ पर कम आपको नजर आएंगे. It is chlorophyll B. It is present in the different groups. Okay, except blue-green algae, red algae, brown and diatoms. This chlorophyll B, it is present in the chlorophyll, that is the green plants, higher plants, and it is present in the green algae. Okay, it is not present in blue-green algae, red algae, and brown algae and diatoms. इनमें chlorophyll B नहीं पाया जाता. It absorbs the wavelength of light 450, then 480 and 650 nanometer wavelength of light. तो बच्चों आपको अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट और द विजिबल लाइट, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी के बारे में पूछा जा सकता है आपके लेवल पर. ओके, सो आपको याद रखना है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके distribution in different groups of plants and the bacteria as well as the protista, then algae. और इनका जो वेवलेंथ है, एब्जॉर्प्शन, दोनों का एब्जॉर्प्शन लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दैट इज द केस. सो नेक्स्ट वन, chlorophyll C. It is its molecular formula is given here, 50 C35H30O5 NO Mg. Then आपको नजर आ रहा होगा कि सभी तरह के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनमें CHON और Mg ये कॉमन है. ओके, Mg is the central metal atom. Non-ionic magnesium is present in chlorophyll A, B, C, D, and E, as well as bacteriochlorophyll. Bacterioviridae, it lack the Mg. Then here, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. This chlorophyll C, it is present in the diatoms and brown algae. बच्चों नीट में पूछा गया सवाल है, which pigments is common in diatom and brown algae. तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना है. Okay, no doubt brown algae and diatoms both contain chlorophyll A, but it do not contain the chlorophyll B and D, but contain the C. याद रखना, brown algae में C
दैट इज द क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, इसे याद रखिए। इट एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ लाइट 650 नैनोमीटर और 645। देन क्लोरोफिल डी, इट इज प्रेजेंट इन द रेड algae। ओके, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C55H70O6N4Mg। तो ये जो है हमने ऑलरेडी किंगडम प्लांटी में इसे डिस्कस किया हुआ है। क्लोरोफिल ए बी सी डी ये जो है अलगे में पाए जाते हैं, डिफरेंट अलगे में पाए जाते हैं। डिफरेंट, जैसे ए बी इन ग्रीन algae, AC in brown algae, and AD in red algae. Okay, red algae, it absorbs the wavelength of light greater than the red, that is 740 nanometer. Infrared ये absorb कर सकते हैं, इसीलिए red algae they can be seen in the deepest ocean or the sea level। ठीक है, so अगला पार्ट दैट इज द बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ये पर्पल, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया जो है इनमें ये पाया जाता है। ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दैट इज द क्लोरोबियम एंड क्रोमेशियम बैक्टीरिया। ये दे एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। ओके, सो ये हुआ क्लोरोफिल के बारे में। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, हम क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बताएंगे आपको। so this is the structure of the chlorophyll। in these all types of the chlorophyll molecule they have the tetrapyrrole ring 1 2 3 4। ये जो आपको 1 2 3 4 लिखा है, पिंक सर्कल जो नजर आ रहा है, ये है that is the tetrapyrrole ring। and this the nitrogen of tetrapyrrole ring, it is coordinately covalently bound with the central non ionic magnesium। तो इस पर आपने ध्यान केंद्रित करना है, इसे याद रखना है। देन दिस टेट्रापायरोल रिंग, हम यहाँ पर क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, हम इस क्लोरोफिल बी को ए के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ विल्स्टर, स्टॉल एंड फिशर इन्होंने इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया है। देन चलिए इसके बारे में देखते हैं। नाउ द नंबरिंग इज गिवन टू द कार्बन, ओके, to the carbon of the tetrapyrrole ring as 1 2 3 4 5 6 and 7 8 for reference। now यहाँ पर आपको याद रखना है कि मिथाइल ग्रुप, क्लोरोफिल ए में जो मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फिफ्थ और कार्बन नंबर 8 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, याद रखिए। सो ये जो है दैट इज द पॉइंट यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर। ओके, बट जो क्लोरोफिल बी होता है उसके जो थर्ड पोजीशन है टेट्रापायरोल रिंग की, वहां पर CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, मिथिल रिमूव होता है और CHO ऐड होता है। देन इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो है यहाँ पर बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो होता है उसमें यहाँ पर एसीटेट अटैच होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन। अब और यहाँ फिफ्थ पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एट पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट ऐसा है कि जो टेट्रापायरोल रिंग जो है थर्ड वाला, और इसका जो कार्बन नंबर 6 है, और ये फॉर्म करता है ए साइक्लिक रिंग, और इस साइक्लिक रिंग के साथ एसिटिक एसिड जो है ये यहाँ पर बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ द ईस्टर बॉन्ड। देन जो फिफ्थ कार्बन है, इस दिस फिफ्थ कार्बन इज अटैच विद द फाइटोल टेल। दिस फाइटोल टेल, इट इज द हाइड्रोकार्बन चेन एंड्स विद द एसिड एसिटिक एसिड। नाउ ये जो है फैटी एसिड की चेन है जो इथील जो इथाइल ग्रुप के साथ, इथिल ग्रुप के साथ यहाँ पर अटैच है। ओके, सो ये जो फाइटोल टेल है, इट इज बरीड इनटू द लिपिड बाय लेयर। ये जो है फाइटोल टेल, ये जो फाइटोल चेन होती है, ये लिपिड के भीतर, ये लिपिड बाय लेयर के भीतर ये धसी हुई रहती है। ओके, क्योंकि ये फाइटोल टेल जो है ये कंटिन्यूअस हाइड्रोकार्बन की रिंग होने के कारण it is lipophilic one, therefore it can easily buried in the lipid bilayer। and this tetrapyrrole ring, it is suspended outside and it absorb or capture the sunlight easily। ठीक है, the absorption of sunlight is due to the double bond present in the tetrapyrrole ring। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इन्हीं की वजह से जो है ट्रांजिशन होता है और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये है क्लोरोफिल ए और बी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन नेक्स्ट वन, कैरोटीनॉइड्स, नॉन ग्रीन non-green type of the photosynthetic pigment carotenoid, it is consist of two different parts। ये दो different parts में divide करते हैं हम आपको। okay, they are yellow, orange or red in color। okay, they absorb the wavelength of sunlight, that is blue and violet region of the sunlight it absorb। and
कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। इसमें दो डिफरेंट ग्रुप है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में क्या डिफरेंस है? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन का डिफरेंट है, दैट इज द C40NH56 is the molecular formula of carotene, while after oxidation carotene converted into xanthophyll, then its molecular formula is C40H56O2। बच्चों इसे याद रखना है आपने, पूछा जाए तो इसका क्या पूछा जाएगा, इसका कलर क्या होता है, ये कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट, वायलेट कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीनॉइड्स के दो डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है, याद रखना। तो ये है इन दोनों का स्ट्रक्चर। कैरोटीन जो है दैट इज द बीटा कैरोटीन, ओके, देन दिस इज द xanthophyll, एग्जांपल ल्यूटीन, दैट इज द येलो कलर ल्यूटीन, ओके। सो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फॉर्म में, उसे हम xanthophyll कहेंगे, और यहाँ पर कैरोटीन में वो एब्सेंट है, याद रखना आपसे भी, ठीक है। So this is about the carotene. The next one part, that is the xanthophyll, sorry, phycobilins। बच्चों फाइकोबिलिन पर नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। सो फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले, ओके, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का, सीयर, अगर इस क्लोरोफिल से अगर मैग्नीशियम निकाल दिया जाए, ओके, इस इफ द मैग्नीशियम रिमूव, अगर मैग्नीशियम रिमूव कर दिया जाए और इस टेट्रापायरोल रिंग को यहाँ से सेपरेट कर दिया जाए, ओके, और ये टेट्रापायरोल रिंग जो है ये इस तरह से linear arrangement of the tetrapyrrole ring without the magnesium and without the phytol tail, that is known as phycobilin। hope you understand this point। phycobilin किसे कहते हैं? अगर इस क्लोरोफिल से मैग्नीशियम मेटल को हटा दिया जाए और टेट्रापायरोल रिंग को लीनियर कर दिया जाए और फाइटोल टेल भी हटा दी जाए, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज, इसी को हम कहते हैं, दैट इज द फाइकोबिलिन्स, उसे हम फाइकोबिलिन कहते हैं, ओके। तो सवाल आ रहा होगा कि फाइकोबिलिन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओके। फाइकोबिलिन इज प्रेजेंट इन, फाइको का मतलब होता है अलगी, यू नो फाइकोलॉजी, ओके। फाइकोबिलिन्स, फाइको मीन्स अलगी, ओके। सो फाइकोबिलिन्स इट इज प्रेजेंट इन, बच्चों इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना। फाइकोबिलिन्स इट इज प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन algae and red algae and red algae, okay। what is the common type of pigment present in blue green algae and red algae, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, okay। these two, blue green algae and red algae, they contain two different types of phycobilins, okay। phycocyanin, a blue color phycocyanin and the red color phycoerythrin, and red color phycoerythrin, okay। phycocyanin and phycoerythrin are the ये क्या है, are the फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट इन रेड एल्गी एंड ब्लू एल्गी। बच्चों इसे याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ओके। दे एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ लाइट ग्रेटर देन रेड एज वेल, red as well as the greater than red wavelength of light they absorb, okay, for performing photosynthesis, and such a organism they can be seen in deepest region of the ocean or the seas, ठीक है। सो इस तरह से हमने जो है ये डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आज कंप्लीट किए हैं, ओके। तो चलिए बच्चों आगे छोटा सा पॉइंट, ओके, ओके। सो आगे जाकर हम, चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बाद, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इट कंप्लीट इन टू डिफरेंट फेजेस, लाइट फेज एंड डार्क फेज, ओके, या फिर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ओके। what is the mechanism of photosynthesis? Photosynthesis reaction it completes in two different reactions, light reaction and dark reaction, that is light phase and dark phase, okay। light phase it completes, it requires the light, and it is known as the grana reaction because light reaction occurs in grana. Dark reaction, dark phase, it do not require the light, it can be in the absence or presence of the sunlight, this dark reaction can be taking place, and it occurs in the stroma of the chloroplast। हमने कल chloroplast का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, okay। So it occurs, this dark phase reaction it is occur in the stroma, therefore it is known as stroma reaction of the chloroplast, okay। So next one it is the light phase is the light dependent reaction,
डार्क फेज इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मगर एक बात आपको बता दे, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डार्क रिएक्शन उस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। देन इट इन्वॉल्व्स द हिल्स रिएक्शन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट फेज में हिल्स रिएक्शन और फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व होते हैं, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर ग्लूकोज फॉर्म होता है, वो हम आगे डिस्कस करना है। यहाँ पर लाइट फेज में एटीपी और NADPH2 जो प्रोड्यूस होते हैं उसे हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, और यही एसिमिलेटरी पावर डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर कर उससे शुगर सिंथेसिस के लिए किया जाता है। बच्चों आपको वापस से री इंटर होना होगा, ठीक है। देन लाइट फेज में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, डार्क फेज में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। सो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बेसिक डिफरेंस आपको याद रखने हैं जो कि हम